Hello, welcome back to my channel Awesome Learning. Children, in the previous video we were doing the Chargaff rule, and today we are going to discuss few numericals which generally come in your boards and also in your NEET exam. Some numericals based on Chargaff's rule. So let's begin with the numerical part today. Now children, the first question here is, you can see, if double-stranded DNA has 14% guanine, so what percentage of adenine, thymine and cytosine would you expect? So they have given you the percentage of guanine and you have to find out the percentage of A, T and C, that is adenine, thymine and cytosine. Now children, you see here the solution part. If G, which is given to you, is 14%, we know that G is always equal to C in a double-stranded DNA, and because G is 14, so the C will also, that is cytosine, will also be 14%. That means G plus C will be 14 plus 14, that is 28%, right? And we also know that a DNA is composed of all the nitrogenous bases, so we will consider them as this: adenine plus guanine plus cytosine and thymine, all of them combined together, and they are 100%, right? Now out of these four, G plus C, we have got 28%. G plus C कितना मिल गया हमें? 28%. So what are we left with? A and T, right? So A and T, how will we find out the A and T percentage? We will just subtract 28% from 100, and what are we getting? 72%. Now this 72% is the amount of DNA, is the amount of nitrogenous base in the DNA. And which nitrogenous base? Only the combination of A and T. That means adenine और thymine मिलाकर कितने बने? 72%, right? और हमें ये पता है कि adenine और thymine जो है, they are equal in amounts. तो अगर हमें adenine find out करना है तो हम क्या करेंगे? 72 divided by 2, that means we are getting 36%. So adenine is 36%, thymine is also 36%, and guanine and cytosine were already 14%. So this was one kind of numerical you can find out. Now the next question here is, children, see, in a 1.6 kilo base pair long piece of DNA. Now pay attention, children, how many base pairs I am talking here? 1.6 kilo base pairs. So a piece of DNA is having how many base pairs? 1.6 kilo base pairs, और इतने सारे base pairs में से 820 are adenine. So they want us to find out how many cytosine we are having. Okay, so let's see, length of the DNA. In the piece of DNA, how much base pairs are we having? 1.6 kilo base pairs. So K means 1000 base pairs. That means 1.6 into 1000 base pairs, right? तो कितनी हो गई क्वांटिटी? 1600 बेस पेयर्स हो गए. नाउ 1600 बेस पेयर्स का मतलब है बेस पेयर्स है 1600. बेस पेयर्स मतलब पेयर जब होता है दैट मीन्स इट इज़ डबल, राइट? तो बेसिस कितने हुए? अगर 1600 बेस पेयर्स हैं तो बेसिस बेटा कितने हुए? डबल, दैट इज़ 3200 बेसिस. ओके, अब 3200 टोटल बेसिस हैं. 3200 बेसिस में से कौन कौन होंगे बेसिस? चारों हो सकते हैं, A प्लस G प्लस T प्लस C, चारों मिला के कितने हो गए? 3200. और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा कि आउट ऑफ दोज टोटल बेस पेयर्स एडेनिन कितने हैं? 820. तो हम पुटअप करेंगे यहाँ पर.
हमें पता है कि एडेनिन कितने हैं 820, और जितने एडेनिन होते हैं उतने ही थायमिन होते हैं, तो हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो 820 प्लस 820 हाउ मेनी 1640 टोटल हमें ए और टी की वैल्यू पता है, हम पुट करेंगे तो हमारे पास जी प्लस सी की क्वांटिटी बच जाएगी, वो हमको फाइंड आउट करनी है। कैसे? 3200 में से 1640 हम माइनस करेंगे तो वी आर गेटिंग 1560। ये 1560 किसका अमाउंट है? 1560 इज़ द अमाउंट ऑफ बेस पेयर्स जो जी प्लस सी मिलकर बना रहे हो। अब हमें पता है जितने जी होते हैं उतने ही सी होते हैं, तो यानी इनमें से 1560 में से आधे जी होंगे और आधे सी होंगे, तो इसलिए हम उसे हाफ करेंगे। सो व्हाट इज़ द आंसर वी आर गेटिंग 780। तो कितने साइटोसिन पूछा था? साइटोसिन कितने हैं? 780 साइटोसिन है। ओके, सो दिस वाज द सेकेंड टाइप। नाउ सी थर्ड क्वेश्चन। सपोज द रेशियो ऑफ ए प्लस जी अपॉन टी प्लस सी इज़ 0.8। ये रेशियो दी हुई है, ए प्लस जी अपॉन टी प्लस सी इज़ 0.8 ऑन वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं ना, ये 2 स्ट्रैंड्स है, तो एक स्ट्रैंड का उन्होंने आपको रेशियो दिया कि इस एक स्ट्रैंड में ए प्लस जी अपॉन टी प्लस सी का रेशियो है 0.8, तो दूसरे स्ट्रैंड का रेशियो क्या होगा? नाउ चिल्ड्रन पे अटेंशन, आपको पता है कि स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, राइट? अगर यहाँ ए है तो उसके सामने टी है, अगर यहाँ जी है तो उसके सामने सी है, अगर यहाँ सी है तो उसके सामने जी है। सो स्ट्रैंड्स आर ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इसका मतलब इस स्ट्रैंड में जितने ए हैं, इस स्ट्रैंड में उतने ही टी होंगे, ऐसे ही इस स्ट्रैंड में जितने जी होंगे इसमें उतने सी होंगे, राइट? सो नंबर ऑफ एडेनिन will be equal to the number of thymine on the opposite strand. Similarly, number of guanine will be equal to the number of cytosine on the opposite strand. तो हमारी वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं? ये तो हमारा क्वेश्चन था कि a प्लस जी अपॉन टी प्लस सी, तो a की जगह को दूसरे स्ट्रैंड में, ये पहला स्ट्रैंड है, तो दूसरे स्ट्रैंड में a की जगह क्या होगा? t। ऐसे ही g की जगह क्या होगा? c। सिमिलरली टी की जगह ए और सी की जगह जी। तो अगर इसकी वैल्यू 0.8 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? रिवर्स 1/0.8। अब आप डेसिमल हटाओगे तो 0 ऊपर लग जाएगा, कैलकुलेट करोगे तो व्हाट आर यू गेटिंग 1.25। क्वेश्चन क्या पूछा था? रेशियो दूसरे स्ट्रैंड का क्या होगा? तो दूसरे स्ट्रैंड का रेशियो होगा 1.05। Understood? I hope this is clear. Next question children is, in a given sample of DNA, adenine 30% है, thymine 20%, guanine 15% and cytosine 35%. तो आपको conclusion बताना है. What is your conclusion? Now children, in this question ये possibility कितनी अजीब नहीं लग रही आपको? क्योंकि अभी तक हम हमेशा चारगेफ रूल में ये बोलते हैं कि जितने एडेनिन उतने थायमिन, जितने गुआनिन उतनी साइटोसिन, बट यहाँ वैल्यूज़ कुछ और ही कह रही हैं। यहाँ पे वैल्यू क्या कह रही है? एडेनिन 30% है, थायमिन 20 है, गुआनिन 15 है और साइटोसिन 35 है। इसका मतलब कि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए तो नहीं है, क्योंकि चारगेफ के हिसाब से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में ए और टी इक्वल होंगे, जी और सी इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं है। दूसरा, ये आरएनए भी नहीं हो सकता, बिकॉज आरएनए में तो थायमिन होता ही नहीं, आरएनए में तो यूरासिल होता है, तो ये आरएनए भी नहीं है। तो ये क्या हो सकता है बेटा? कंक्लूजन क्या है कि इट कैन बी अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में ए टी जी सी की क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है। जितने मर्जी ए हो सकते हैं, जितने मर्जी टी हो सकते हैं, जितने मर्जी जी से हो सकते हैं या सी हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ ए और टी हो, जी सी हो ही ना, ज़ीरो हो, ऐसा भी हो सकता है। सो कंक्लूजन क्या कहता है? मैंने आपके लिए सारी एक्सप्लेनेशन लिख दी है कि इन दिस केस ए इज़ नॉट इक्वल टू टी एंड जी इज़ नॉट इक्वल टू सी, then it means it is not a double stranded DNA, because in a double stranded DNA A is equal to T and G is equal to
see, and this also cannot be an RNA because here we are not having uracil, here we are having thymine is present here. So what is my conclusion? The conclusion is that it can be possible that it is a single stranded DNA. Okay children, then in the next question, little bit tough question children, you have to pay attention here. In a given length of 6.8 nanometer bDNA, amount of adenine is 20%. लेंथ कितनी है 6.8 नैनोमीटर और इसके अंदर कितना एडेनिन है 20% एडेनिन है. यू हैव टू कैलकुलेट द हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर देयर बिटवीन द नाइट्रोजनस बेस. अब देखो कितना अजीब सा क्वेश्चन है. लेंथ दे दी, अमाउंट ऑफ एडेनिन दे दिया, पर पूछ क्या रहे हैं कि कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं जो दोनों डीएनए दोनों नाइट्रोजनस बेस के बीच में हैं. तो देखते हैं. वी नो दैट पिच. अब आपको याद होगा जब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हम लोग स्ट्रक्चर कर रहे थे तो आपको याद होगा कि 1 टर्न जो होता है हम उसे पिच बोलते हैं और उस 1 पिच का जो लेंथ है वो 34 एंगस्ट्रॉम्स है और उसमें 10 बेस पेयर्स होते हैं. दिस वाज डन. ओके, 1 सिंगल टर्न जो है दैट इज़ पिच विच इज़ 34 एंगस्ट्रॉम्स और 34 एंगस्ट्रॉम्स को अगर हम नैनोमीटर में लिखें तो इट इज़ 3.4 नैनोमीटर. ओके, तो एक पिच अगर 3.4 है तो हमारी लेंथ क्वेश्चन में कितनी है 6.8, यानी डबल पिच है. पिच इज़ डबल्ड 6.8 नैनोमीटर. दैट मीन्स डबल लेंथ ऑफ द पिच होगी. तो अगर एक पिच के यानी 3.4 का में 10 बेस पेयर्स हैं, सी 3.4 नैनोमीटर में अगर 10 बेस पेयर्स हैं तो 6.8 में कितने होंगे डबल 20 बेस पेयर्स. तो बेस पेयर्स अगर 20 है तो बेसिस कितने हुए, मैंने पहले ही बताया है, पेयर को डबल कर दो तो कितने बेसिस हुए 40 बेसिस हुए. अब 40 बेसिस में से क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, देखो 40 बेसिस में से 20% जो है वो एडेनिन है. टोटल बेसिस कितने हैं 40, उसमें से 20% आर एडेनाइन. सो लेट्स सी 20% ऑफ बेसिस आर एडेनाइन. तो 20% ऑफ 40 कितना हो गया 8. ओके, तो अगर एडेनिन 8 है तो थायमिन भी 8 होंगे. तो दोनों का टोटल प्यूरिन्स का कितना आ रहा है 16. ओके, ना G+C कितना होगा बेटा, टोटल 40 में से 16 माइनस करोगे तो G+C कितना आ रहा है 24. तो G+C अगर 24 है तो इंडिविजुअल G और C की क्वांटिटी क्या होगी, इसकी हाफ, दैट इज़ 12. अब देखो कितने एडेनिन 8 एडेनिन, कितने थायमिन 8 थायमिन. तो इन दोनों के बीच में 8 के बीच में हर एक के बीच में डबल बॉन्ड है, यानी एक एडेनिन और एक थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड है. ऐसे ही दूसरे एडेनिन दूसरे थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड है. ऐसे कितने हमने लिखने हैं 8 एडेनिन और 8 थायमिन. तो हाउ मेनी डबल बॉन्ड्स, 16 डबल बॉन्ड्स. सिमिलरली G और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड. हाउ मेनी G एंड C's आर देयर 12. तो कितने हो गए हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स 12 × 3 दैट इज़ 36. तो टोटल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने हो गए 36 + 16 दैट इज़ 52. सो दीज आर सर्टन न्यूमेरिकल्स which can come in your NEET exam also, in your board exam also. It's just it should strike, आपको क्लिक करना चाहिए राइट टाइम पे, राइट चीज़ आपको सोचनी है, तभी आप